Hello all. Today we are going to continue with the internal style sheet. So yesterday I have told you few properties and I told you कि जो internal style sheet होती है it affects the single document. As you have seen, if I have used heading tag 2 times here, okay, H1 I have used 2 times in my web page. So if I have defined color is green, background color is yellow, तो you will see कि both the headings will appear with the same formatting with green color and background color is yellow. So today we are going to continue some more properties. We are going to learn some more properties. Border, okay. If suppose you want to apply border, suppose I am going to apply border on the page. अगर आपको पेज पे border apply करना है तो what you will write body tag, ठीक है. First of all, जब आप borders apply करते हो it has 3 attributes. इसके 3 attributes होते हैं style, color and width, ठीक है. But the most important thing कि when you are going to apply border, first of all you will apply style, क्योंकि जब तक आप style apply नहीं करोगे it will not show the border. Color and width में आप दोनों में से किसी को भी पहले आगे कर सकते हो, but जब भी आपसे border apply करने को बोला जाएगा, first of all you will start style. You will write border hyphen style. In your book so many styles are given. Suppose I have used dashed, ठीक है, this is the style. तो you will see कि border will apply on the page of all the 4 sides, ठीक है. Let's start. You can see now this is the border. क्योंकि मैंने body पे apply किया है तो it is applied on the full page. One more thing, if you want to apply different border styles on all the 4 sides, suppose आपको top पे दूसरा style चाहिए, या if you want to apply only on the top or only on the bottom, या फिर आपको सिर्फ top या bottom पे border style करना है या left और right पे, तो you have a choice. उसके लिए आप क्या करोगे, border hyphen top. Suppose मैंने को border सिर्फ top पे apply करना है तो I have written border top style dashed. See, border will appear only on the top, ठीक है. You have this choice also, either you can apply different styles of the border on all the 4 sides or either you can apply the border on the sides according to your choice. Suppose if I want to start border bottom, अब bottom पे मैं border दूसरा चाहती हूँ, ठीक है, तो bottom border style double, ठीक है. Same way if I want border लेफ्ट, मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ, स्टाइल इंसेट, ओके. यू विल पुट सेमीकोलन व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज. राइट स्टाइल आउटसेट, दीज आर द नेम्स. ये आप अगर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के नेम्स देखने तो यू कैन चेक योर बुक, सो मैनी स्टाइल वैल्यूज आर गिवन. Now you will see it will apply different borders on all the 4 sides. ये देखो, inset, double and outset, okay. Now after that you can apply the width. आप color apply करो चाहे width apply करो, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, but style must be mentioned first. So I am going to show you the width. color भी लगा सकते हो पहले. Suppose I have written 20, ठीक है, it is in pixels, ठीक है. Now you can see ये अब inset और outset की वजह से इसका कलर ग्रे आ रहा है, it just because of style. But if you will apply the color तो color will be on all the 4 sides. तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी चारों स्टाइल पे लगाने तो वो भी आप कर सकते हो. तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा border left color and whatever color you want. But if you are writing border hyphen color, suppose you have applied red color, तो it will apply same color on all the 4 sides. I must have something wrong. Okay, here I didn't put semicolon, that's why. ठीक है. So in this way you can see it had applied different styles on all the 4 sides and color. Now next is height and width. Suppose अगर अब आपको
हाइट एंड विड्थ पैराग्राफ की चेंज करनी है, यू कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ ऑन ऑल द एलिमेंट्स, नॉट ओनली ऑन टेबल और पिक्चर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन अ पैराग्राफ. तो आई एम गोइंग टू शो यू पैराग्राफ में यहाँ पे सेमी कोलन लगा के हाइट भी आप दे सकते हो, आइदर इन पिक्सल्स, जैसे मैंने दे दिया 30%, और आइदर इन, वो आपकी मर्जी है, जिस पे भी आप लगाओगे उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाएगी 50%. ठीक है, आई विल शो कि जो पैराग्राफ है उसकी भी हाइट विड्थ इट विल बी चेंज्ड. ठीक है, सो इट हैज़ चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पैराग्राफ. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज आउटलाइन. आउटलाइन भी बॉर्डर की तरह होता है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यू कैन सी कि आई हैव अप्लाइड बॉर्डर ऑन द पेज, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बॉडी एलिमेंट हियर. अब अगर आपको आउटलाइन भी अप्लाई करनी, मैं आपको सेम बॉडी पे ही अप्लाई करके दिखाऊंगी, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आउटलाइन एंड बॉर्डर. तो सपोज आई हैव रिटन आउटलाइन, इसके भी सेम 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल, कलर एंड विड्थ. Okay, and here is also the same rule, you will use style first you will mention the style. So suppose I have written dotted, but here you cannot apply different outline styles on all the 4 sides. ये भी एक डिफरेंस है कि आउटलाइन आप चारों डायरेक्शंस में, चारों साइड कैन नॉट बी अप्लाई डिफरेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, यू कैन अप्लाई सेम स्टाइल ओनली ऑन द ऑल द 4 साइड्स. तो जब आप आउटलाइन और बॉर्डर दोनों सेम शो करोगे, सेम एलिमेंट पे अप्लाई करोगे, तो आउटलाइन विल ऑलवेज कवर द बॉर्डर. सी यू कैन सी द डॉटेड बॉर्डर, डॉटेड आउटलाइन. जो बॉर्डर होता है वो एलिमेंट को कवर करता है एज इट हैज़ कवर्ड योर पेज, और जो आउटलाइन होती है वो आपके बॉर्डर के बाहर आती है. ठीक है, तो आउटलाइन का मतलब ही है कि इट विल बी कवर्ड आउटसाइड. अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है, आउटलाइन हाइफन विड्थ, तो आप पिक्सल्स जरूर लिख लीजिएगा. सपोज आई हैव रिटन 15px. ठीक है, मे बी अगर आप सिर्फ 15 लिखें तो इट विल नॉट बी शोन. ओके, आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो इट हैज़ अप्लाइड द डॉटेड outline. Color also you can apply. For this you will put semicolon again. आपको बार बार लिखना पड़ेगा. ठीक है, आउटलाइन को. Width, sorry, color I have applied pink. Okay, you can see it had changed the color of outline, that is pink. Okay, one more प्रॉपर्टी इज लेफ्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, डैट इज फ्लोट. तो मैंने आउटलाइन बता दिया, बॉर्डर बता दिया, हाइट एंड विड्थ हैव टोल्ड, मार्जिन हैव टोल्ड, फॉन्ट प्रॉपर्टीज हैव टोल्ड, बैकग्राउंड कलर, कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट. वन इज लेफ्ट, डैट इज इमेज. तो उसके लिए पहले हमें अपने HTML पे इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी. एज आई हैव टोल्ड यू, इफ यू वांट टू पुट एनीथिंग ऑन द वेब पेज यू कैन ओनली पुट विद द हेल्प ऑफ HTML. तो हम बॉडी टैग के अंदर जाएंगे and here I am going to put image, but मुझे इसके पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए because I want to show you something which is really very important sometimes if you want to make your web page interactive. Okay, तो here I have created the paragraph tag. जब भी आपको image के साथ पैराग्राफ लिखना हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंसर्ट द इमेज टैग. पैराग्राफ से अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के साथ आपकी इमेज आए, चाहे आपको इमेज लेफ्ट रखना हो या राइट रखना हो, पैराग्राफ टैग के पहले हमेशा इमेज टैग को आप यूज़ करोगे. तो इमेज टैग यू नो वेरी वेल हम कैसे करते हैं इमेज के साथ सोर्स. अब इमेज का जो पाथ है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे. फॉर दिस फर्स्ट यू विल गो टू योर गो द लोकेशन where you have saved your pictures. So here I have saved my pictures. Okay, right click on that picture, click on properties, click on security tab and object name. ठीक है, from here you can copy the path. It's very easy. Okay, and paste it here. ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब पहले तो मैं आपको शो करती हूँ कि जो आपकी इमेज है अगर आप पैराग्राफ के साथ चाहते हो तो HTML में वो कैसे आती है। ठीक है, अब पैराग्राफ की हाइट विड्थ को मैं चेंज कर देती हूँ बिकॉज अब मुझे पैराग्राफ इमेज के साथ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिमूव हाइट एंड विड्थ फ्रॉम द p टैग, ओके, सो दैट आई कैन शो यू कि HTML में अगर इफ यू वांट टू पुट इमेज टैग विथ पैराग्राफ तो हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, अब इमेज में HTML में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप इमेज के साथ पैराग्राफ चाहते हो तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। मे बी अगर मैं इसका साइज़ पैराग्राफ का छोटा कर दूं तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं अगर फॉन्ट साइज़ यहाँ पे 67 दे रखा है, इफ आई एम पुटिंग इट 27 स्टिल इट विल नॉट अपीयर विद इमेज। ठीक है, ये देखो नीचे ही आएगा। अगर अब एक प्रॉपर्टी होती है CSS में फ्लोट, इफ़ यू विल यूज दैट प्रॉपर्टी तो यू विल फाइंड ब्यूटीफुली इट विल रैप अराउंड द इमेज। जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में देखा है कि जो इमेज होती है वो बिल्कुल आपके टेक्स्ट के साथ होती है, तो आई वॉन्ट दैट अपीयरेंस। तो फॉर दिस वी हैव वन प्रॉपर्टी इन CSS दैट इज फ्लोट। अब आप वापस स्टाइल टैग में आओगे। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर ही यहाँ पे आपको जिस पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, इमेज पे ही ये प्रॉपर्टी, सिर्फ एक फ्लोट ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमेज पे अप्लाई होती है, अदरवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज यू कैन अप्लाई ऑन एनी टैग। तो इमेज और फ्लोट की दो ही वैल्यूज हैं, लेफ्ट और राइट। इफ़ यू वांट इमेज एट द लेफ्ट हैंड साइड तो यू विल राइट लेफ्ट, लेकिन इसके लिखे बिना योर टेक्स्ट विल नॉट बी रैप्ड अराउंड द इमेज। नाउ यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली इट विल रैप अराउंड द टेक्स्ट। ये देखिए आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे योर टेक्स्ट विल बी, अब ये जो ये ऊपर से इतना जो स्पेस है ये जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन, बिकॉज समवेयर ये देखिए आई हैव गिवन द मार्जिन फ्रॉम द टॉप, दैट्स वाई। तो यू कैन डिलीट इट। ठीक है, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ HTML में क्या हो रहा था कि आपका पैराग्राफ नीचे ही जा रहा था। तो यू कैन रैप द टेक्स्ट अराउंड द इमेज विद द हेल्प ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी। और अगर आप चाहते हो इमेज राइट साइड आए तो वो भी कर सकते हो। फ्लोट में आप लेफ्ट की जगह क्या कर दोगे, राइट। ठीक है, तो आपकी जो इमेज है दैट विल अपीयर एट द राइट साइड एंड पैराग्राफ विल बी लेफ्ट साइड। ओके, so in this way as I have told CSS is better than HTML, but without HTML you cannot do the coding of CSS, क्योंकि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, जैसे इमेज इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, तो वो हम बिना HTML के नहीं कर सकते। CSS का काम क्या है, उसे एनहेंस करना, उसको ब्यूटीफुल बनाना। जो प्रॉपर्टीज़ हम HTML के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते इन ऑल द टैग्स, यू कैन अप्लाई ऑन द in the CSS with the help of this. So except float, the rest of the properties you can apply on any tag. तो you can see कि ये inline मैंने आपको internal बताया है। ठीक है, internal में क्या होता है, HTML के अंदर ही head लिखोगे, फिर style tag लिखोगे, और ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं वो सब स्टाइल टैग के अंदर है। फिर स्टाइल टैग क्लोज करोगे, हेड क्लोज करोगे, और बॉडी के अंदर सबसे पहले तो आप एक वेब पेज बनाओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि पहले मैंने एक वेब पेज बनाया था, उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि आपको बैकग्राउंड लगाना है पैराग्राफ में ऑल दैट, तो आप क्या लिखोगे, आप हेड, स्टाइल, फिर जो भी प्रॉपर्टी आपको बोली गई है वो लिखोगे, एंड देन क्लोज स्टाइल एंड क्लोज हेड, अगर आपको इंटरनल से बोला जाता है। ठीक है, कि आपको इंटरनल पे वर्क करना है। और अगर तो आज हमने इंटरनल कंप्लीट कर लिया है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स वेरी इजी। और यही सेम प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सटर्नल में भी बता रखी हूँ, यही सेम प्रॉपर्टीज़ आपको इनलाइन में भी करनी है। तो कल मैं जो आपको वीडियो भेजूँगी वो इनलाइन का होगा। ठीक है, उसमें हम स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने उसको एज अ टैग यूज़ किया है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। थैंक यू चिल्ड्रन।